Good evening, friends. Once again, welcome to each one of you in this Monday Manthan series, where we are going to discuss a different topic on each Monday. And today topic has been assigned slightly changed. And today's topic is practical issue in DPT3 with along with the question answer related to it, and any other query with regard to MCA compliances. If you can ask in the chat box. We have with us eminent expert CS Bharti Goel. Bharti, welcome to you on this Thank you, sir. platform. Thank you so much. And as each one of us know that CASA is organizing regularly series, activities, webinar, seminar to enhance the knowledge of the members at large. In this continuation, today's session has been assigned regarding the MCA compliances, especially DPT3. About Bhartiji, she is practicing company secretary, having more than 10 years experience in the field of MCA compliances. And apart from this, she is regular speaker in this company jet. And fortunately, we have invited us Bharti 2 times earlier in this CASA platform. And Thank you. welcome to each participant also. Now, I request Bharti to take up the technical session, move forward. And members, if you have any query, you can ask in the chat box so that Bharti will take up, our other moderator will take care. Over to you, Bharti, for your discussion. Thank you, sir. Thank you so much for this regard. And everyone know about my name, and I have so many years experience, as Sumit sir told you already. So let's start our topic regarding applicability and filing of the form DPT3. So we have to start with a new experience and with new practical examples I'll give you. Definitely, you will understand each and every point regarding filing of form DPT3. So give me 2 minutes only. I'll connect the my PPT. Bharti, Kanika is there, and she will take care Okay. the query and Hi other part Bharti, how also. are you? If I'm any fine, query and is there, Kanika, then she please will share ask. me. Now I'm connecting my PPT. Bharti, are Just you, to any issue in connecting PPT? Yes, I think so. There is two options one participant can share at a time. I'm connecting now, but there is no option for sharing my PPT. Yeah, I think share screen is there, no? At the I'm bottom. connecting, but there is okay. Now it's connecting. Yes. So let's start regarding filing of form DPT3 and what is the applicability of form DPT3 and which kind of transaction we can do under the filing of form DPT3 and which what is the amount regarding the main issue, um, the amount on which the form is applicable and the transaction under which the filing of form DPT3 is applicable. Everyone we can discuss. So let's start. Ministry has notified this on 22nd January. Just a second, sir. I'm adjusting the screen. Okay, now it's adjusted. Ministry of the Corporate Affairs by notification number
notification dated 22nd January 2019 inserted this provision of filing DPT3. On the basis of it, we have to file Form DPT3, but some transactions are exempted, totally exempted from DPT3. That is most important for everyone to know about which kind of transaction is exempted for Form DPT3 and what is the mandatory transaction for DPT3. So let's discuss what is the deposit and exempted deposit transaction considered as exempted deposit. And 2 points of Form DPT3. Final consequences क्या होंगे? Each and everything we have to discuss. First of all, what is deposit and exempted deposit? If we talk about deposit, everything, every amount considered under Companies Act as deposit, every money by way of deposit, loan, or any other form by company, but but doesn't include such category of amount as may be prescribed in consultation with the RBI. That is most important. For Rule 2 of companies deposit rule में ये mention है rule 2, that is exempted deposit. So we have to discuss, that is central government in rule 21C of companies acceptance of deposit rule 2014 prescribed 18 category of transactions which shall not be considered as deposit, and apart from those every receipt of money will be considered as deposit. That is, any receipt of money by way of deposit, loan, any other form, except those transactions which are prescribed in this. Okay, let's discuss of this rule, exempted deposit. So, first of all, we, I have, I'm describe you what is deposit and what is exempted deposit. So, if we talk about exempted deposit, there is 18 transactions that is covered under exempted deposit. If we talk about first example of this, any amount received from central government, state government, any government, if we receive any amount that is under Rule 21C, consider as no deposit, that is exempted deposit. Secondly, foreign government, any amount received from foreign government, foreign international bank, yeah, multilateral financial institution, that is also considered as exempted deposit. Any amount received from banking company or any amount received as a loan, financial assistance from public financial institutions, any amount received against issue of commercial papers, any other instrument, that is 18 transactions. We are talking about 18 transactions of exempted deposits. Any amount received by a company from any other company. But some transaction, there is a loopholes of government. That is consider any amount received by a company from any other company. Not, they are not talking about body corporate. They are not talking about LLP. They are not talking about partnership firm. They are talking about only any other company. That is considered exempted deposit. Seventh point is that amount received as an advance against security, share application money pending for allotment, and such advance should be adjusted by way of allotment within 60 days from the date of receipt of money or refund. Such amount within 15 days from the date of completion of 60 days. Otherwise, such amount will be treated as deposit. That means if we have taken amount as a share allotment, that application money we can keep in our bank account only for 60 days. After that, it will be considered as deposit. Within 60 days, it is not considered as deposit. But after 60 days, if we are not refunding, if we are not allotting the shares, then it will be considered as deposit. That is most important. 6 point and 7 point. Every person आप ये कह लीजिए कि हर बंदा इन 2 पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाता है. ये ऊपर वाले पॉइंट से लोन का, या हमने गवर्नमेंट से लिया है या फिर बैंकिंग कंपनी से लिया है,
या फिर आपने फॉरेन कंपनी से लिया है. So simple regarding the exempt, if we consider as an exempted deposit. But those points, which is most important, there is so many loopholes in key points in that regarding exempted deposit. If we talk about 8 point, any amount received from a person who at the time of receipt of amount was director of the private company or public company. But सिटी इन्होंने ये तो बता दिया कि हमने जब लोन लिया था डायरेक्टर से, तो वो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर भी लोन दे सकता है कंपनी को, पब्लिक कंपनी का भी डायरेक्टर कंपनी को लोन दे सकता है. ठीक है. बट सेकंड पॉइंट में रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट कंपनी को कवर किया है, पब्लिक कंपनी को कवर नहीं किया है. प्लीज नोट दैट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट. That is also an important point. Subject to a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out of fund acquired by him by borrowing or accepting loan or a deposit from him. ये डिक्लेरेशन लेना बहुत जरूरी है हर एक सीए के लिए जब वो ऑडिट कर रहे हैं. और अगर उनकी बैलेंस शीट में डायरेक्टर से लिया गया लोन है, आपके पास उनका एक डिक्लेरेशन होना चाहिए, क्योंकि आप उनकी बैलेंस शीट सर्टिफाई कर रहे हैं, आप उनकी बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं. आपके पास उस डायरेक्टर का डिक्लेरेशन होना चाहिए जिसमें ये मेंशन हो, ये जो फंड जो मैंने कंपनी को दिया है आउट ऑफ द फंड एक्वायर्ड, मतलब बोरोइंग फंड नहीं. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेशन होना ही चाहिए. 8.8. 9 point, any amount raised by the issue of bond debenture secured by the first charge or a charge ranking pari passu with the first charge on any asset referred to in schedule third of that, excluding intangible asset of the company or bond debenture compulsory convertible into share of the company within 10 years. If we talk about bonds and debenture, that is secured bond. We are only talking about secured bonds and debenture. We are not talking about unsecured bonds and debentures. Secured bonds and debentures जो first charge पर security created है, that is also including under exempted deposit, provided that if such bond or debenture are secured by charge of any asset referred to in schedule third of the act, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट पे उनकी सिक्योरिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए. The amount of such bond debenture shall not exceed the market value of such asset as assessed by registered capital. जब आपने bonds और debentures इशू किए किसी सिक्योरिटी पर, वो आप रजिस्टर्ड वैल्यू से उसकी वैल्यूएशन कराएंगे और मार्केट वैल्यू से वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए. जो बोन्स है, डिबेंचर्स है, उससे एक्सीड नहीं होने चाहिए. 9A में उन्होंने कवर किया एनी अमाउंट रेज बाय इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी एंड लिस्टेड ऑन अ सिक्योर. इसमें 3 पॉइंट्स कवर होते हैं हमारे एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट, ये आपके डिपॉजिट जो आपके एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है. फर्स्ट पॉइंट इज दैट एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर not constituting a charge on the asset of the company and are listed on a recognized stock exchange as per the applicable regulation made by SEBI. Any amount received from employees will be not exceeding, sorry, 2 points इसमें cover है. फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. कोई भी आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है जो आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने चाहिए एज पर द रूल, और आपके नॉन कन्वर्टेबल होने चाहिए, दैट इज आपके एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट में आते हैं. लेकिन अगर वो कन्वर्टेबल है और सभी पे लिस्टेड नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर डिपॉजिट. 10th पॉइंट इज दैट एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉय. अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय से लोन ले रही है, कोई अमाउंट ले रही है, that is also not exceeding his annual salary under contract of employment with the company in the nature of non-interest bearing security with other. That is also under covered under exempted deposit. क्योंकि कंपनी अपने एम्प्लॉय से अमाउंट रिसीव कर रही है, वो भी उसकी
सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होता है दैट इज कंसिडर अंडर डिपॉजिट, और अगर कम है दैट इज ऑल्सो कंसिडर अंडर इंटरेस्ट डिपॉजिट। एनी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड इन ट्रस्ट। आपने ये देखा, मैंने आपको पहले बताया कि हम कंपनी से लोन ले सकते हैं, बट हम पार्टनरशिप फर्म से लोन नहीं ले सकते, दैट इज कंसिडर अंडर डिपॉजिट। आप एलएलपी से लोन नहीं ले सकते क्योंकि वो कंपनी नहीं होती, वो एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है। हम पार्टनरशिप फर्म से नहीं ले सकते, हम जो मेंशन बॉडी कॉर्पोरेट से नहीं ले सकते। लेकिन उन्होंने ये बोला एनी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट, अगर हम नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव करते हैं और हेल्ड करते हैं इंटरेस्ट, दैट इज कंसीडर अंडर एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट। If we talk about 12th point, any amount received in the course of for the purpose of the business of the company, any advance, अगर आपने किसी गुड्स को सप्लाई करने के लिए एडवांस लिया है, जो भी आपने 365 डेज के अंदर अंदर उसको एडजस्ट भी कर दिया है, रिगार्डिंग आपने सप्लाई कर दिया है गुड्स का, सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, लेकिन दैट इज अलाउड ओनली फॉर 365 डेज, इससे ऊपर वो डिपॉजिट में कंसीडर हो जाता है। उसी तरीके से एडवांस रिसीव इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट प्रोवाइडेड दैट सच एडवांस इज एडजस्टेड अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी। ओनली एडवांस जब आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिया है, वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही एडजस्ट होना चाहिए, दैट इज कंसीडर अंडर एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट। अदरवाइज अगर आपने एडवांस लिया है मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन आप 2 साल बाद उसको, 1 साल बाद भी उसको, तो ये वाले पॉइंट पे 365 डेज अप्लीकेबल नहीं होते हैं, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के केस में अप्लाई होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 365 डेज अप्लाई नहीं होते। अगर हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी की एडवांस की, तो हम सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट दी अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट में एडवांस लिया है। As security deposit for the performance of the contract for supply of goods or provision of services. ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के लिए, कि हम उसको सप्लाई करेंगे, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, पर हम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर as an advance towards consideration for providing future services in the form of warranty or maintenance. हम फ्यूचर में आपको सर्विसेज वारंटी की देते हैं और मेंटेनेंस देते हैं, दैट इज ऑल्सो as an advance towards consideration for providing future services in the form of warranty maintenance contract used for the written agreement or arrangement if the period for providing such services doesn't exceed period prevalent as per common business practice for 5 years. हमारी यही हमारा बिजनेस है कि हम एडवांस लेते हैं, उसके अगेंस्ट हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वारंटी प्रोवाइड करते हैं, या हमारे एग्रीमेंट में इस तरीके से मेंशन है कि हम 5 इयर्स तक का एडवांस ले सकते हैं, हम आपको ये सर्विसेज देंगे, बिकॉज दैट इज सर्विसेज, दैट इज बिजनेस कंसीडर, टर्म्स है हमारे बिजनेस की, हम ऐसा अलाउ अलाउ कर सकते हैं। as in advance received or as allowed by any sectoral regulator or in accordance with the direction of central government or state government. अगर हमने किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एडवांस रिसीव किया है, के थ्रू हम कोई वर्क कर रहे हैं, सेक्टोरल रेगुलेटर फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम फिर ये एडवांस में in advance for subscription to vote application whether in print or in electronic to be adjusted against receipt of such publication. हम तो ये एडवांस अलाउड है क्योंकि हम पब्लिकेशन के लिए एडवांस दे रहे हैं, provided that if the amount received under item A, B and D, जो हमने यहाँ पर मेंशन की थी, A, B and D as an advance towards consideration for providing future services, वारंटी और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, अगर हम किसके बारे में बात करते हैं, above become refundable with or without interest due to the reason that the company accepting the money doesn't have necessary permission or approval wherever required to deal in the goods or property or services which the money is taken, then the amount received shall be due to the deposit under the rule.
हम ये रिफंडेबल, द कंपनी एक्सेप्टिंग द मनी डजंट हैव नेसेसरी परमिशन, रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम रिफंड। Explanation: for the purpose of this clause, the amount referred to in the first proviso referred to in the proviso shall be deemed to be deposit on the expiry of 15 from the date they become due for refund. जब वो रिफंड के लिए ड्यू हो रहा है उसके 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ड्यू उसको रिफंड नहीं किया, दैट इज कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। Any amount brought in by the promoter of the company by way of unsecured loan in pursuance of the stipulation of any lending financial institution, बैंक सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस। कहते हैं कि प्रमोटर अगर अनसिक्योर्ड बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन ये प्रोवाइड कर रहा है कोई अमाउंट अपनी कंपनी को, तो उसकी कंपनी की कंडीशन है कि प्रमोटर जो है अमाउंट प्रोवाइड करेगा, दैट इज ऑल्सो अंडर exempted deposit. Any amount accepted by Nidhi company, any amount received by way of subscription in respect of chit fund and chit fund companies, okay, so he allowed. Any amount received by company under any collective investment scheme in compliance with regulation framed by SEBI, that is also exempted deposit. An amount 25 lakh or more received by startup company. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गवर्नमेंट ने बाद में कंसीडर किया था। 17 पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। An amount 25 lakh rupees or more received by startup company by way of convertible note, convertible into equity share or repayable within a period not exceeding 10 years from the date of issue of single tranche from person, that is exempted deposit. बट अगर वो कन्वर्टेबल नहीं होते हैं 10 साल के अंदर तो फिर भी उसे डिपॉजिट कंसिडर करता है। जो अलाउड है अमाउंट वाइज 20,000। एनी अमाउंट रिसीव बाय अ कंपनी फ्रॉम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड फंड, that is exempted deposit. So the above list, अगर हम इस लिस्ट की बात करें और आउट ऑफ द लिस्ट ही हमने बात की है, जैसे कंपनी के अगेंस्ट मैंने बताया कि कंपनी से तो अलाउड है बट एलएलपी से अलाउड नहीं है, या मैंने आपको टाइम बताया कि एडवांस जो हम लेते हैं किसी गुड्स के अगेंस्ट तो 365 डेज तक अलाउड है, उसके ऊपर होते ही डिपॉजिट बन जाता है। अगर हम इस लिमिट की बात करें जो इसमें मेंशन है 18 लिस्ट में, दैट इज एग्जेम्प्टेड लिस्ट, एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट, जो हम आज की डेट में डीपीटी 3 में मेंशन करते हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है 30 जून है और जिसके रिगार्डिंग हम 31 मार्च का डेटा उसमें मेंशन करते हैं। अगर हम फॉर्म डीपीटी 3 की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसे हमें चूज करना पड़ता है, लाइक वन टाइम रिटर्न। डीपीटी 3 में मेंशन होता है वन टाइम रिटर्न है या रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है या फिर कंसिडर एज डिपॉजिट नहीं है। जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट जिससे हमने 221C की बात की थी ये वो है, या फिर फोर्थ पॉइंट की बात करें रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन बाय कंपनी नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट। ये दोनों है, मतलब रिटर्न भी डिपॉजिट भी है और एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट भी है। फोर पॉइंट आपको डीपीटी 3 में मेंशन होंगे जिसमें आपने एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को मतलब पॉइंट को टिक करके हमें उस फॉर्म को फिल करना है। लेकिन ध्यान रखिए वन टाइम रिटर्न सिर्फ एक ही बार गया था जो 2019 में गया था, 2019 में। अगर हम डिपॉजिट की बात करें, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट से बाहर है वो कवर करते हुए डिपॉजिट रिटर्न ऑफ डिपॉजिट में जाता है, जो प्राइवेट कंपनी को या पब्लिक कंपनी को लेना अलाउड नहीं है। पब्लिक कंपनी के लिए अगर पब्लिक कंपनी लेती है तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेक्शन 73 की फॉलो करती है, लाइक रेटिंग कराती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को हायर करती है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जो पब्लिक कंपनी की करने पड़ते हैं अगर वो डिपॉजिट लेती है तो। लेकिन इसमें एक पॉइंट जिसमें सभी सीए या फिर सीएस या फिर जो फाइल कर रहा होता है डीपीटी 3 वो कंफ्यूज हो जाता है, लाइक जैसे कंपनी ने अपने मेंबर से अपने शेयर होल्डर से अमाउंट ले रखा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट covered under exempted list of deposit, but it is not a deposit for a public company. अगर
कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर से अमाउंट लेती है, कोई अमाउंट लेती है, दैट इज नॉट एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट, बट ये अलाउड डिपॉजिट में आता है। आप उसके लिए रिटर्न ऑफ डिपॉजिट के लिए टिक करेंगे अगर आपके शेयर होल्डर से एडवांस ले रखा है। अगर आपके पास वो ट्रांजेक्शन भी है, जैसे कि आपने डायरेक्टर से भी लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, तो आप दोनों ट्रांजेक्शन पर करते हुए ये फोर्थ पॉइंट का रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन बाय कंपनी नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट टिक लगाकर फॉर्म कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हमने शेयर होल्डर से लोन लिया है, वो डिपॉजिट नहीं है, अलाउड डिपॉजिट है प्राइवेट कंपनी के लिए। बट अगर हम प्राइवेट का पब्लिक कंपनी की बात करें तो वो एक लिमिट मेंशन है, और उस लिमिट के बाद उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी। पॉइंट 7B, डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। अगर हम क्लोजिंग ऑफ अकाउंट की बात करें तो ये हमारी 31 मार्च 2014 की बात करते हैं। तो हमारा अकाउंट कौन से मेंशन करने हैं, एक चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम DPT3 में मेंशन करेंगे, कोई अमाउंट है जो हमने लाइक हमने कोई अमाउंट लिखा है, बोरोइंग कितना था, कितने सालों से ड्यू था, 3 ईयर से ड्यू था या उससे ज्यादा से ड्यू था, जो मेंशन करेंगे वो हमारे बैलेंस शीट के, तो अब हमारी 30 आगे बनती है बैलेंस शीट में, टोटल पूरा मैच करना चाहिए हमारे उससे बैलेंस शीट के अमाउंट से। तो ऐसे ही रफ मेंशन नहीं करना होता है DPT3 में, प्रॉपर ऑडिटेड के साथ ही मेंशन करना होता है। अगर हम बात करें नेटवर्क की, एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रीसीडिंग द डेट रिटर्न, अगर हम प्रीसीडिंग बैलेंस शीट की बात करें तो डेट इज 31 मार्च 2023, क्योंकि हम प्रीसीडिंग की बात कर रहे हैं, right? If we talk about the current financial year, that is 2024, 31 March 2024, अगर हम पीछे की लेटेस्ट उसकी बात करते कि रिटर्न के प्रीसीडिंग ऑडिटेड बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो वहां पर 31 मार्च 2023 का डेटा मेंशन। अगर बात करें कॉन्सिक्वेंसेस, हमारे माइंड में ये आता है कि अगर हम फाइल ही ना करें DPT3 तो हमारे ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या एप्लीकेबल होगा हमारे ऊपर, क्या हमारे ऊपर पैनल प्रोविजन लगेंगे या सिर्फ हमारे पास अमाउंट वाइज ही हमारे ऊपर पेनल्टी आती है। तो अगर हम देखें सेक्शन 76A में ये मेंशन है, क्योंकि पहले अगर हम देखें सेक्शन 76 में ये मेंशन था कि अगर कंपनी DPT3 फाइल नहीं पेनल्टी लग जाती थी एडिशनल, लाइक अगर 400-500 की फीस आ रही है तो वो एडिशनल 40 डेज के बाद इंक्लूड होती चली जाती थी, पैनल कोई प्रोविजन नहीं थी। लेकिन अगर हम सेक्शन 76 की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013, punishment for contravention of section 73 in section 76, section 76A newly inserted by companies amendment act 2014, ये सबसे एप्लीकेबल हुआ है 29 मई 2015, where a company accept or invite or allow or causes any other person to accept, invite on its behalf any deposit in contravention of the manner or condition prescribed under section 73, अगर कोई भी प्रोविजन सेक्शन 73 के कॉन्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या फिर बियॉन्ड द सेक्शन 73 के, क्योंकि उसमें कुछ लिमिट भी प्रोवाइड कर रखे हैं, बियॉन्ड किए जाता है, कॉन्ट्रीब्यूट किया ही जाता है सेक्शन 73 या रूल 21C, इसमें एग्जाम्पल डिपॉजिट की डेफिनेशन सेक्शन 76 और रूल मेड देयर अंडर, if a company fails to repay the amount or a part thereof, any interest due thereon within the time specified under section 73, section 76 rule made thereafter further time as may be allowed by tribunal under section 73, टाइम पीरियड प्रोवाइड किया गया है कि आप अ, इतने टाइम की प्रोविजन लगेंगे, ये आपके ऊपर पेनल्टी आएगी, दैट इज द कंपनी शैल इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट or a part thereof and the interest due be punishable with fine which shall not be less than 1 crore rupees, twice the amount of deposit accepted by the company. बाय चांस अगर कंपनी ने डिपॉजिट लिया है तो या तो 1 करोड़ रुपए की या फिर twice the amount of deposit accepted by company whichever is lower but which may extend to 10 crore rupees, and
बी में उन्होंने ऑफिसर के ऊपर भी पेनल्टी लगाई है, जो ऑफिसर डिफॉल्टेड है उसको जो है 7 years पेनल प्रोविजन इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, एंड with the fine which shall not be less than 25 lakh rupees but which may extend to 2 crore, provided that if it is proved that the officer of the company who is in default has contravened such provision knowingly or willfully with the intention to deceive the company or its shareholder or depositor or creditor authority, he shall be liable for fiction under section 442. सो अगर हम इस पूरी सेक्शन की प्रोविजंस देखें तो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, तो 18 पॉइंट्स के अंदर आते हैं। अगर हम उसके बाहर जाते हैं या कोई बिल्कुल हमने कोई डिफॉल्ट किया है तो ये हमारे इस पूरे प्रोविजन के अंदर हमारे ऊपर पनिशमेंट लगती है अंडर सेक्शन 76। थैंक यू एवरीवन, बिकॉज मैंने उन पॉइंट्स को क्लियर किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर। Any doubts regarding? जी हाँ, थैंक यू भारती। प्रेजेंटेशन से वापस वही सारे पॉइंट्स रिकॉल कराने के लिए, बिकॉज एक साल के बाद जब फॉर्म आता है तो हम भूल जाते हैं कि क्या 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 डिपॉजिट है, क्या नहीं है, क्या एग्जेम्प्टेड है। तो सारे वो पॉइंट्स रिकॉल कराने के लिए थैंक यू। और ड्यू डेट ऑब्वियसली 30 जून आई रही है, तो हम लोगों को अब सारी अपनी बैलेंस शीट्स को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सारे प्रोफेशनल्स इसके ऊपर। अगर एक बारी चैट बॉक्स में अगर किसी के कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दें उससे रिलेटेड, और हम लोग फिर एक एक करके उसे कंसिडर कर लेते हैं। no issue ma'am, we are waiting for the queries and questions. अगर किसी का कोई प्रैक्टिकल इशू चल रहा है जो DPT3 फाइल करते वक्त फेस कर रहे हैं तो उसे एक बारी मेंशन कर दीजिए। Please everyone raise your hands if you have any query regarding section 73 or deposit हाँ जी regarding सर, any. आप पूछ सकते हैं। आप एक बारी Raise your hands and give some points in comment box. एक You have doubt. हैंड रेज हुआ पड़ा है। एक बारी चैट बॉक्स चेक कर लो भारती, वहां पे एक दो क्वेरीज चल रही। Opening balance 1st April 2023 and when paid during the year. The Yes. DPT required? No. No. If closing balance is zero regarding DPT3, अगर आप सारे पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं और क्लोजिंग बैलेंस उसका जीरो है तो आपको DPT3 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इफ द फाइनेंशियल आर नॉट फाइनलाइज बाय 30 जून, फिर आपको बैलेंस शीट में इशू आएगी। आई नो दैट फाइनलाइज नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स है तो आपको 30 जून तक आपको फाइनल करके आपके पॉइंट्स को एक ऑडिटर जो एक सर्टिफिकेट बनाता है इसके रिगार्डिंग उसमें मेंशन करके देन आप DPT3 करें। अदरवाइज ये मैच नहीं करेगा आपके बैलेंस शीट से और आपको इशू कल को मतलब इशू आएगा इसके रिगार्डिंग कि आपके DPT3 में अमाउंट अलग है और आपके बैलेंस शीट में फाइनलाइज अमाउंट अलग है। तो प्लीज जो भी आप DPT3 बनाए वो फाइनल अमाउंट ही कंसीडर करके बनाए। तो क्वेरीज भारती, थी कनिका जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हो? आई एम नॉट ऑडिबल। Yes, Kanika, can I ask? ये हाँ जी, आप पूछिए। Hi, thank you, Bharti ji, for quick insight about DPT3. I have two queries. जी बताएं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और 100% फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है। जी
फॉरेन कंपनी ने जब कंपनी ये बनी थी लॉन्ग ईयर समवेयर 9 years बैक, उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की और कुछ पैसा कंपनी को और दिया फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस। ठीक है, और वो पैसा उसका एलआरएन जनरेट नहीं हुआ आरबीआई में। ठीक है, एलआरएन का भी सेपरेट प्रोसीजर चल रहा है। कुछ समय तक लास्ट ऑडिटर्स ने, अकाउंटेंट्स ने उसको कभी तो करंट लायबिलिटी दिखाया, कभी अनसिक्योर्ड लोन दिखाया, और उसका DPT3 में कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। मतलब इस पर्टिकुलर जो इंडियन कंपनी है आपकी प्राइवेट कंपनी, उसके रिगार्डिंग कोई फॉर्म ही नहीं गया है DPT3। आज तक कोई फॉर्म राइट। नहीं। तो ऐसे केस में क्या करना है, एक ये है। लेकिन लेकिन मैंडेटरी है। अगर अगर हम देखिए, कुछ कंप्लाइंस ऐसे होते हैं कि हाँ हमने फॉलो ही नहीं किया, हमने कंप्लाइंस किया ही नहीं, हम्म पैनल प्रोविजन में तो आते ही हैं। अगर हम्म कल को ये चेक होता है, अगर हम मुझसे ये पूछते हैं कि ये मतलब ठीक है कि हमने फाइल नहीं किया, आज की डेट में ना करे, तो मैं आपको नॉन कंप्लाइंस की कैसे आपको ओके कर दूं? दैट इज ऑल्सो अ नॉन कंप्लाइंस ठीक है। फॉर इंडियन कंपनी। हम्म अगर अगर वो जब भी पकड़ी जाएगी, ठीक है, आरओसी थोड़ा सा डिले इन सब चीजों को कंसीडर कर पाती है, या हम्म इनकी चेकिंग थोड़ी सी डिले है, लेकिन दैट इज नॉट कंप्लाइंस पॉइंट, दैट इज नॉन कंप्लाइंस। आपको आज नहीं तो कल अगर ये मतलब होल्ड में रहती है आरओसी के, फिर ये आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। और इसकी पेनल प्रोविजन आप देखिए, अगर सेक्शन 76 के थ्रू जाएंगे तो बहुत हैवी है। आप यस, ये देखिए, अगर आपकी बैलेंस शीट बन चुकी है तो आप इसके बैकडेटेड भी फॉर्म फाइल कर सकते हैं। ठीक है। एक तो ये है। सेकेंड थिंग, अर्लियर अ फॉरेन डायरेक्टर वाज देयर, और 1-2 साल के पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया, अब इंडियन डायरेक्टर से है उसी कंपनी में, सब्सिडरी में। अब वो डायरेक्टर जो है शेयर होल्डर भी है, ठीक है। और उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग आज तक पड़ी है 2 साल से, और वो डायरेक्टर डिमांड भी नहीं कर रहा, क्योंकि अपनी कंपनी तो नॉर्मल डिमांड नहीं करते, जब जब जरूरत होती है वो पैसे मांगते हैं, वो चला जाता है। तो ठीक है। इस अमाउंट को कहाँ पे दिखाएं, बिकॉज हम ये कहते हैं कि 365 डेज के बाद में उसको डिपॉजिट कंसिडर कर लेना चाहिए लाइबिलिटी को, आप बट इस केस में, कंफ्यूजन कर रहे हाँ, हैं। यहाँ मेरे को कंफ्यूजन है। मैं आपके कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करती हूँ। देखिए, तो दबांश जो है वो 365 डेज फॉर इनपुट्स और सर्विसेज की बात करता है। ठीक, ये डायरेक्टर की सैलरी को कंसीडर नहीं करता है 365 डेज के अंदर के लिए। ओके, सपोज कोई कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट उन्हें मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 2 लाख रुपए एडवांस मिला है कि आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 6 महीने बाद हमें ये गुड्स जो है प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है। दैट इज एडवांस अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज। हम्म, बट अगर आपकी क्वेरी की बात की जाए तो वो डायरेक्टर की सैलरी की बात करता है। तो ठीक, यहाँ पर आप इस पॉइंट में इस तरीके से कवर नहीं कर सकते कि 365 डेज से डिले चल रहा है, दैट इज अंडर एग्जेम्प्टेड लिस्ट और डिपॉजिट। नो, तो वी आर इसको टॉकिंग इसको अबाउट डीपीटी में गुड्स और डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट अ डिपॉजिट ना, नहीं। फॉर द पर्पस ऑफ DPT3। नहीं, आपने ये बोला है कि डायरेक्टर की सैलरी नहीं दी गई है तो उस हाँ, हिसाब से डायरेक्टर मैं, की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो पे नहीं हुई है अभी पूरी, हाँ, 100% पे नहीं हुई है 2 साल। दैट इज ये इस सेक्शन में ही कवर नहीं होता है, सेक्शन 73 में ही कवर नहीं। ठीक, दैट थैंक इज नॉन कंप्लाइंस कि आप वो सैलरी नहीं दे रहे हो, दैट इज नॉट कंप्लाइंस, दैट इज यू। नॉट कंसिडर अंडर सेक्शन 73, और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्शन 76 की पेनलाइज प्रोविजंस लग जाए तो। ठीक है, थैंक यू भारती। ओके, आई थिंक वन क्वेरी इज लेफ्ट। If in private limited company, loan from director is taken and no other transaction, is it mandatory to DPT3 envelope? लोन फ्रॉम डायरेक्टर, ऑब्वियसली अगर आपने डायरेक्टर से लोन चाहे सिंगल अमाउंट का ही लिया है तो आप DPT3 फाइल करेंगे। उसमें जो थर्ड पॉइंट है, उसमें स्टार्टिंग में ही 4 पॉइंट आते हैं कि वन टाइम रिटर्न है या रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है या एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है या रिटर्न इन डिपॉजिट और एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट दोनों है। आप थर्ड पॉइंट को टिक करके ये आप जो लोन ले रखा है डायरेक्टर से उसको मेंशन करके इसको फाइल। एनी अदर एक क्वेरी? आई थिंक एक क्वेरी क्वेरी और लेफ्ट है। पेंडिंग है। एक क्वेरी हाँ और जी, पेंडिंग इज है इट भारती, इज इट कि क्या नील DPT3 फाइल करना मैंडेटरी है? हाँ, मैं वही वही कनिका उसी पे आ रही थी। इज इट मैंडेटरी टू फाइल नील DPT3? नो। अगर आपके क्लोजिंग बैलेंस
कोई बोरोइंग या फिर कंसीडर्ड 18 पॉइंट के अंदर एग्जैक्टली डिपॉजिट नहीं आता, या आपने कोई डिपॉजिट नहीं ले रखी, प्राइवेट कंपनी के लिए तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि वो पेनल प्रोविजन में आ जाती है। उनको तो छूट दीजिए कि डिपॉजिट ले रखा है या नहीं, एग्जैक्टली डिपॉजिट वाली लिस्ट में भी कवर नहीं होते, और आपको कोई डीपीटी फॉर्म फाइल नहीं कर। एक क्वेरी कई बार मेंबर्स से और आती है कि मेरी लास्ट ईयर भी बैलेंस शीट की लोन फ्रॉम डायरेक्टर की फिगर 1 लाख चल रही है और इस साल भी लोन फ्रॉम डायरेक्टर की फिगर 1 लाख ही चल रही है, यानी कि करंट ईयर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ना एडिशन हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो क्या उस वाले सिनेरियो में मुझे फाइल करने की रिक्वायरमेंट है? करना है क्योंकि वहां पर एजिंग की गई है। अगर आप एग्जैक्टली फॉर्म को देखें, हाँ, एजिंग की गई है, उसमें यही मेंशन किया गया है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। क्लोजिंग बैलेंस 3 ईयर से ज्यादा है, 1 ईयर से कम है, इस तरीके से एजिंग की गई है, तो वहां पर आपको 1 लाख रुपीज आप क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएंगे। और अगर वो 1 साल से ऊपर है, 3 साल के अंदर है, उस वाले एजिंग वाले पॉइंट में दिखा देंगे, अदरवाइज मोर देन 3 ईयर्स जितना भी है वो आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाके देख। एक इस वाली क्वेरी पे एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं, जिन्होंने ओपनिंग बैलेंस पूछा था, मुझे लग रहा है ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 23 को तो किसी अमाउंट की फिगर थी या किसी ट्रांजेक्शन की फिगर थी, बट अब मैंने वो करंट ईयर में पे करके 0 कर दिया है, तो क्या मुझे DPT3 फाइल करना जरूरी है? मैंने उन्हीं का आंसर किया था कनिका, कि नहीं, अगर क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 है, चाहे ड्यूरिंग द ईयर्स हमारी लाखों की ट्रांजेक्शन हुई हो, लेकिन क्लोजिंग में हमारा 0 बचा है क्योंकि हमने पे ऑफ कर दिया सारे, क्लोजिंग में 0 है तो हमें कोई डीपीडी फॉर्म नहीं फाइल। भले ही मेरा ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कुछ भी आ रहा था, अगर मेरे पास क्लोजिंग में फिगर नहीं है तो नहीं है। शायद नहीं यही है तो रीजन है नहीं। कि DPT3 में अगर सिर्फ पेमेंट वाले कॉलम पे अगर हम फिगर्स डालते हैं तो फॉर्म भी नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, आगे आई चलते थिंक हैं। सभी की क्वेरी मैं ले पाई हूँ, अगर किसी का डाउट है तो भी मैं वेट करती हूँ, बता दीजिएगा अगर किसी का फिर भी डाउट। किसी और मेंबर की कोई क्वेरी है तो यहाँ पे प्लीज मेंशन कर दीजिए, या डायरेक्टली अनम्यूट कर देते हैं, आप एक बार डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है हम एनी क्वेरी इन MCA, हाँ MCA कंप्लायंसेस के ऊपर भी कोई क्वेरी है तो उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। जी, आप पूछ लीजिए, कोई क्वेरी ऐसी है जो आपको भी केवाईसी से रिलेटेड पूछनी है, DPT3 से रिलेटेड पूछनी है, या फिर आगे आने वाले बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कोई डायरेक्टर्स रिपोर्ट के रिगार्डिंग पूछनी है, तो आप पूछ, एनी अदर देन ऑल्सो। मुझे लगता है नहीं है कि मेंबर्स के एंड से अभी ऐसी कोई क्वेरी है, या उनके ऑलरेडी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो आई थिंक अच्छा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेशन को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, आज के सेशन को। अगर किसी की कोई क्वेरी होती तो ऑब्वियसली अब तक चैट मैसेज में आ चुकी होती, तो हम लोग आज का सेशन कंक्लूड कर सकते हैं। एंड भारती, थैंक यू सो मच कि नेक्स्ट। वापस वो 18 पॉइंट्स रिकॉल कराने के लिए, बिकॉज हम लोग भूल जाते हैं, हमें सिर्फ 3-4 याद रहते हैं, तो 18 के 18 पॉइंट्स वापस रिकॉल कराने के लिए थैंक यू। और थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कनिका जी, सुमित जी, Thank थैंक you, Bharti, for your wonderful deliberation, and thank you, यू सर। Kanika, for moderating. Thanks to all participants for joining and interacting in this MCA compliance. I think MCA पर query अभी actually we have not started, तो इसलिए it was too early कि MCA पर query लोगों के भी नहीं आई है। जी, Later on हम एक बार फिर प्लान करेंगे जब भी इसकी जरूरत होगी। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। So with this, once again, thanks to all. Thank you. जी। Thank you. वेलकम।